Namaste ji, welcome back. Stop the class. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha. Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahavirang Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So, yes, welcome back. We are seeing Atma Bodh, and as we know, Shastra's main topic, Vedanta Shastra's main topic to convey is to help a jiva recognize their own true nature, and to help us recognize our real nature, it has to walk us through what we understand as our nature. What we understand or what we know as what is my basic nature. Shastra has to help us through that. And it does through various techniques, methods, through various unfoldments is the right word. One of them is a very simple nudge, intellectual nudge, to say not this, neti. What I believe myself to be as who I am, Shastra, like an adult, we call her also Mother Shruti, purely out of
helping us out of compassion, out of the spirit of Lokasangraha. Shruti nudges the intellect because what I think I am is a self judgment. It is a conclusion. It is a self conclusion. It is an opinion about myself, made by myself. मेरे विचार में मैं ये हूं, मेरी समझ में मैं ये हूं, just मेरे अनुकूल, मेरी दृष्टि में मैं ये हूं. I'll just switch on the video in a minute. What I think is my own self perception. मेरी सोच है ये. So what is the job of a shastra? It has to walk me through it. मेरी ही सोच को मुझे ही दिखाना है कि इस सोच में क्या ये पूरी सोच गलत है या एक सोच का अंश गलत है. That it's a self conclusion completely misfounded or is a part of it misfounded. There is only one part that needs correction, that needs a right orientation, that needs a right that needs to be corrected. Let's put it this way. What is it then? So Shastra says the part that is to be corrected is the part which when you will look at it, examine it, जब आप उसको ध्यान से सिर्फ देखोगे तो उस part of your perception में जो चीज नश्वर है, what has sharatvam means it has the nature of decay and destruction. आपकी सोच में the part which has sharatvam, the part which has a sense of bondage, the part which has a sense of limitation, the part which has a sense of a part, let's say, sense of a division, that part you remove, usko त्यागो, त्याज्य. सिर्फ उस हिस्से को निकाल दो. निकाल दो means abandon it. Abandon it from where? From the perception of who you are. If you abandon it from the abandon means tyajna. Tyajna means literally tyagna. Abandon is a compromised word. What is tyajna? किसी को कुछ चीज को अपना माना, अपना समझा, उसको फिर अपने से अलग कर दिया, उसको त्यागा मीन्स अपना तो है, अपना ही अभी तक है, अभी भी प्रिय है, but I still give it away and I lose my connection with it. I lose my owning it.
If you have a precious piece of a jewelry जिसको आप pass down from generations. When it is time for you, you have worn it, saying it is precious. When it is time for you to also pass it on. Now, when you are passing it on, आप क्या कर रहे हो? अभी तक जो मेरी उसमें अहम बुद्धि, मम बुद्धि थी, मेरा है करके, अभी तक जो मैंने उसको अपना माना हुआ था, अब मैं उसको मानना छोड़ रही हूं, अपना मानना छोड़ रही हूं। और जब मैं उसको अपना मानना छोड़ती हूं, तो ऑटोमेटिकली माय कनेक्शन विद इट इज लॉस्ट, इट्स डिस्कनेक्टेड। वो जो संबंध जोड़ा है मैंने उसके साथ, वो संबंध ऑटोमेटिकली is now disconnected. So what does Shastra really tell us? It says your true nature, आप क्या हो, इसको पहचानने के लिए आपका एक अंश है आपके विचार में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो अंश एक दिखेगा जो बार बार बदल रहा है, जो शरस स्वभाव का है, क्योंकि वो बदलता है तो वो शरत्वम है। इट हैज डीके एंड एंड इन इट, डिसइंटीग्रेट होता है। व्हाट हैज कम टुगेदर वो डिसइंटीग्रेट होगा। सो वो पार्ट आप उसको त्यज्य, अपने से उसको अलग कर दो, अपने विचार में आप उसको डिस्कनेक्ट कर दो। सो नाउ इट इज लेफ्ट फॉर अस टू डिसर्न, हमारे अंदर, हमारे सोच में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको मैंने मैं कहा है, मेरे से जुड़ा है, और वो शर स्वभाव है। ऐसा क्या है मेरे अंदर, मेरे विचार में, मेरी परसेप्शन में ऑफ हु आई एम, what is it which has the nature of change and dissolution, where in my perception of who I am, so automatically आपको दिखने लगेगा एक एक करके। क्या दिखता है? Immediately the आकार of the शरीर, the properties of the शरीर, the qualities of the शरीर, the body, but natural शर स्वभाव है। Whatever has that sharatvam, Shastra says tyajya. From where? I'm not going to abandon the body, I can't, but I will abandon it from the self conclusion of who I am. और अब ये कैसे किया जाएगा? How does one do it? Constantly, the minute the perception brings in us the focus of the body being important, the body being essential, the body equated to my existence, मेरे होने का मतलब है मेरे शरीर का होना, तभी मुझे लगे कि मैं हूं। दिस मेरा होना एंड मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी का जो एकत्व मुझे दिखता है,
मेरा होना का अर्थ ही मुझे लगता है कि मेरे शरीर का होना। मेरा शरीर है तो मैं हूं। That conclusion is, Shastra says, nudges us intellectually. इसमें एक अंश को आपको त्यागना ही पड़ेगा if you want to truly know who you essentially are. व्यतिरेक करना पड़ेगा. So what am I to give up? This coexistent ekatva that I feel today of my existence with my body. इनका जब मुझे कोएग्जिस्टेंस दिखता है, मेरा होना मुझे तभी दिखता है जब मेरा शरीर है. If my body is there, I am. I discern, Shastra says, इसमें से body is changing. Because it is changing, ये आपका existence हो ही नहीं सकता. They cannot logically be your existence. Because in your existence, if you look at the perception, in your existence, there is always a continuity. इसमें ऊपर नीचे नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस नहीं है, ब्रेक्स नहीं है. सो दैट विच इज क्षर स्वभाव, intellectually, by discernment, give it up. As what? No. My existence and my body, they are not one. Then what do I do with the body? The body is a borrowed building. Body is a borrowed material. Borrowed or lent, gifted. Body is, गलती से मैंने इसको मेरा मन लिया, मेरा शरीर कह दिया मैंने, मगर शरीर मेरा नहीं है. तो क्या है, किसका है? borrowed है. It is lent to me. मेरे को गिफ्ट मिला है. For how did you get it, from where? That ईश्वर जो उसका मालिक है, वो जो उसका ओनर है. कैसे पता मुझे? क्योंकि जब ये शरीर मेरा बदल रहा है तो उसमें मेरा एग्जिस्टेंस नहीं बदला. My feeling of who I am continued through the changing form. Also, जब शरीर मेरा वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, एक्सेट्रा होता है, so all the elements, right? All the elements sustain the body. The elements that sustain the body, ये तो प्रकृति के नियम के हैं. प्रकृति इनकी ओनर है. मुझे थोड़ा सा उन्होंने लेंड कर दिया, बोरो दे दिया. I borrowed it. Prakriti is also Ma. She gives me what I need. I need food, I need air, I need space, I need whatever I need. Prakriti gives. The elemental existence of the body, Prakriti nourishes. उनका आपस में coexistence है. If my body is made up of space, air, fire, water, earth,
It needs to be kept alive. It needs to be kept rejuvenated. What fuels it is the prana shakti. प्राण शक्ति इसको संचलित करती है, मगर इसको नरिश जो कर रही है वो तो प्रकृति अपने ही एलिमेंट से अपने ही एलिमेंट को नरिश करती है. The food, the water, the air, everything is nourishing the food, the water, the air here. इनका अपने में रिश्ता है, ये अपने से अलग नहीं हो सकते. They are also one. शरीर is made up of elements, and these elements and these elements are actually only Prakriti. Because it is Prakriti, प्रकृति को जुड़ी हुई है, उससे भिन्न नहीं है. ये प्रकृति अलग है और वो प्रकृति अलग है, ऐसा नहीं है. It's not that the space, air, fire, water, earth that is outside that I call as matter is different from the space, air, fire, water, earth that this body is made up of. Are they two different? प्रकृति तो एक ही है, एलिमेंट तो एक ही है. इनका अपना संबंध एक्चुअली संबंध भी नहीं है, ये एक ही है. The air that you find in Antarctica, वायु तत्व, वायु जो वहां है वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, थ्रू आउट द ग्लोब वायु एक है. वही वायु शरीर में जा रही है, संचलित हो रही है मेरे प्राण से, मेरे प्राण एज इन प्राण शक्ति से, वो संचलित करती है और इस मटेरियल को जिंदा रखती है. लेट्स पुट इट दिस वे, it keeps the fuel running to keep the body alive, as if. Why does it, what is a sambandh? The sambandh is only not between Prakriti and Prakriti. This steadiness of me, which is existence, जो साथ चल रहा है, ये इस शरीर में, मेरी भ्रांति में, शरीर को मैंने मैं कह दिया. Is the statement logically correct? Means is it graspable? This elements, शरीर भूतों से बना है, और भूत यहां शरीर के अलग हैं और बाहर अलग है तो नहीं है ना. भूत तो सब एक ही है, एलिमेंट्स तो सेम है. किसी का भी शरीर बना हो, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, इवन प्राणी, हम तो इंसानों की बात कर रहे हैं. एनी प्राणी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो किससे बना है, उसका शरीर का मटेरियल क्या है. इन विंटर्स वी आर ऑल वेयरिंग दीज वुलन्स. इस वूल का मटेरियल क्या है, वूल ही है ना. अब जो वूल है, सबका वूल वूल ही है. अब ये वूल जिसको हमने वुलन कहा है, मेरे शरीर पे है तो मुझे क्या लग रहा है, मेरा, माय स्वेटर, माय शॉल, माय जैकेट. मगर इसको मैंने उतारा, जब मैं इसे उतार दिया तो ये क्या हुआ. Forget that. All of us have lost a parent. And when we look
back, or okay, some of us have lost a parent, not all of us. But when you look back at the clothes they owned, and it's fascinating, आपको आकार भी दिखता है अपने पेरेंट का उसके अंदर, बिकॉज यू हैव सीन देम इन दैट. मगर क्या ये वाकई में उनका था? सो व्हेन यू हैव इट नाउ, ये मटेरियल जब उनके पास था तब भी क्या था? वूली था. अब भी तुम्हारे पास है, अब क्या है? वूली है. इट इज द सेम वूल. बट व्हाट इज द भ्रांति, मिसपरसेप्शन क्या हो रही है? एक जजमेंट एरर क्या बन रहा है उनका और मेरा? Where is the error happening in my thinking? I somehow lose the sight of the knowledge that it is wool. It's not that I do not know it's wool. ऐसा कोई भी नहीं होगा, बालक को भी पता है कि ये तो वूल है. और वूल कहाँ से आता है? शीप से आता है. सबको पता है ये तो. मगर वो फिर भी नॉलेज, it's not that I don't have the knowledge that this is woolen, but yet that knowledge seems to have a layer over it. I seem to kind of not remain in the connection with that knowledge and keep my distance with it and not call it mine. मैं ये ऑब्जेक्टिव नहीं रख पा रही उसको. वो ऑब्जेक्ट है, मैं उसको ऑब्जेक्टिव नहीं रख पाती. The word objective is clear, no? It is an object. What is wool? An object. I really used to find it very interesting. My mother used to love doing the knitting work. बचपन से उनको देखा है. Not, she was not very, one of the best ones. मतलब वो बहुत अच्छे से नहीं बना पाती थी. उनके कट्स वगैरह सब asymmetrical हो जाते थे. But she would love it. मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब छोटे होते थे. बड़ा fascinating लगता. अच्छा तो नहीं, but fascinating. She would take me with her to the wool shop and then pick up, ask me कौन सा कलर अच्छा है, क्या है, ये है, वो है, all those टाटा करके, and then she'd bring up some 11, 12, 10, whatever you require, the balls of wool. 10, 11, 12 wool ले आए ना. मुझे वो पूरा प्रोसेस ऑब्जेक्टिव दिखता था. मुझे लेके गए. तब तक मुझे वूल का कोई ना कलर से संबंध है, ना वूल से संबंध है, कुछ भी नहीं है. It's in the shop. I don't have knowledge of that also. Once I enter the shop, start scanning. Okay, this color, this, acha iske itne. Now once it comes home and you bring it home, you slowly start finding how that like of the color starts to spread over. जैसे जैसे स्वेटर गुथ रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे वो आकार ले रहा है, वैसे वैसे आपकी वो लाइक उसमें परवेड करने लगती है. And when it's ready and you wear it, it gives you a joy. My sweater. This is my sweater. Made by my mother. इतना रस आने लगता है. It gives you a warmth. I hope you get the रस factor. एक रस आने लगता है. ये रस, ask yourself, just before you went into the shop, तब तक ये रस था क्या? That specific रस नहीं था. That रस started to increase. वो डेवलप हुआ
बना, उठा, बना, एंड देन वो रस अब रस रिमेन्स टू स एक्सटेंड कि वो चिथड़े हो रहे होंगे बड़े होने के बाद आपके स्वेटर के, बट आप फिर भी उसके पकड़ के रखोगे. What was it before? It was wool. What is it? You saw it being made. उसने एक आकार ले लिया. Once the आकार is there, it fits you. ये आपका हो गया. मेरी बुद्धि में ये वूल की दृष्टि ओवरलैप हो गई. It's overwritten. It doesn't erase the fact that I know that this is wool. I can always connect to it. I can anytime make myself remember, अरे ये तो wool है. That's why satsang is constantly in our life. हम इसे भूल ही नहीं सकते. सत्संग थोड़े दिन के लिए गायब हो जाए हमारे जीवन से, इस कंट्री के बहुत महात्म्यम है that we keep getting this सत्संग कहीं ना कहीं से आता रहता है. थोड़े दिनों के लिए भी if we don't have, that wool sweater will take me over and my rag and dvesh will take me over. But what keeps that rag and dvesh in check? The fundamental fact कि ये wool है, कि मैं इसको कितना भी पसंद कर लूं, ये मैं बन ही नहीं सकता. ये मैं हो ही नहीं सकता. इसका और मेरा कभी संबंध बनेगा ही नहीं. ये हमेशा ही वूल था, हमेशा ही वूल रहेगा. And if anything at all, it will only disintegrate back into its own state from where it has come. But ये और मैं रह ही नहीं सकते. Yes, correct. So automatically that overlap gets corrected by the remembrance of a fact of knowledge that I already have. What did Shastra do? It only helped me remember, reconnect कि इस ओवरलैप जो होता रहता है अपने ही विचार में, क्योंकि हम सबको अपनी पूर्णता चाहिए, हम सबको अपना स्वरूप बोध चाहिए. एक वहीं पे हमें पूर्ण शांति मिलेगी, वहीं पे हमारा पूर्णत्वम हमको, a place where there'll be no strife and struggle felt. सबको प्रिय है वो स्थान. तो हम उसको, instead of delving through the process of tyagna, what I have overlapped as myself in a attempt to find fulfillment, instead of doing that tyagna, averagely we all keep replacing the objects of overlap. एक को बदल के दूसरे को, दूसरे को बदल के तीसरे को, we change the objects. But what does Shastra help us do? It says, bring to your memory, to your recognition, अपनी तुम्हारे खुद के ज्ञान को आप कनेक्ट करो. Connect to the knowledge within you that Shastra has helped you invoke. आत्मबोध तो सबको है, अज्ञानी को भी आत्मबोध है, बट उसका ओवरलैप्ड है. By what? This false अहम दृष्टि, जो ये एग्जिस्टेंस को शरभंगुर ऑब्जेक्ट से जुड़ के एक अहम की प्रतीति हो गई है. उस अहम की प्रतीति को फिर से शास्त्र says, nudging us intellectually,
start de-entangling yourself. In other words, the sweater that I have received, what am I to do? बुना था, उसको क्या करना है? क्योंकि उस बुनने के आकार में मेरा मैं बैठ गया। अब मुझे क्या करना है? एग्जाम्पल में तो बहुत इजी है, अब मुझे उसे उधेड़ना है। क्योंकि बुना है ना, एक ही धागे से बुना था। कितना फैंटास्टिक है ये! एक ही धागे ने बांध दिया, आगे का, पीछे का, ये शोल्डर कट दे दिया, स्लीव दे दिया, है ना, जिसको जैसा जो पसंद आया, इनमें दूसरे कलर का बॉर्डर दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, सबका फैंटास्टिक। As per our own karmas, we have all received some sweaters. इन स्वेटरों को हमने अपना मैं कर दिया, क्योंकि I find myself existent in it. It's not that I have made a mistake here. मेरे मैं की अनुभूति ही मुझे इस स्वेटर में हो रही है। What is that sweater? This शरीर। इस शरीर के एक्चुअल किससे बना है ये? जैसे हमारा एक्चुअल वुलन स्वेटर वूल के एक धागे से बना है। हमें पता है कि ये शरीर 5 एलिमेंट से बना है, लेकिन फिर भी व्याप्त होती है ये हमारी बुद्धि को, हमें आच्छादित करती है, एज इफ ओ मेरा, बिकॉज द भ्रांति इज कि माई एग्जिस्टेंस इज टैलीड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी। और ये जो टैली हुआ है, ये सिर्फ बॉडी में रहते ही इसको अनटैली किया जा सकता है। While I have a body, while I have a sweater, only तभी तो मैं उसे उधेड़ूंगी ना। अब मैंने वो स्वेटर किसी और को दे दिया और मैं लगी हूं उधेड़ने में, पॉसिबल? जब तक वो स्वेटर मेरे पास है तभी तक तो मैं उसको उधेड़ूंगी। ट्रू, बट इफ इट वाज एज इम्पॉसिबल, शास्त्र वुडंट हैव टोल्ड अस आल्सो। So because I have it with me, and that is very, very important, let's not get distracted into how difficult or how impossible it looks today. Because if we remain with that, then it will never look possible. Whatever is difficult is possible. But what is impossible, Shastra never tells us. And fact is that possibility can only come if it is a truth, if it is a fact. Possibility होना कब होता है? Now supposing Shastra said a human being with horns, go find a human being with horns. If you find a human being with horns, you will get enlightened. और हम में से बड़े निकल गए इस यात्रा में, अरे मुझे एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। How other religions say, go do this, go do that, and you will find heaven, etc. तो हमें भी अगर हमारे शास्त्र ने कहा होता कि गो फाइंड, जब भी आपको, जिस जन्म में भी आपको मिल जाए एक इंसान ऐसा जिसके सर पे सींग है, और a child who is born from a mother who has never given birth, go find one. When you find one, you will get enlightened. मोक्ष मिल जाएगा आपको। Now what is this? Impossible. तो इसमें पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते आप। So आप पुरुषार्थ करोगे तो what are you doing? You are totally deluded. You are adding one more layer. इसको कहते हैं superstition, इसको कहते हैं disbelief, इसको कहते हैं blindly following.
वी आर एक्सट्रीमली ग्रेट। पता नहीं, अपने भाग्य को तो आप शायद कितना समझें, टू ईच वन आवर ओन, इफ वी हैव गॉट an access to this Vedic Shastram. Because Vedic Shastra will never ever, yes, true, does not tell us something which is impossible. So it may be looking to be difficult, but fact remains that that alone is your truth. अब ये पुरुषार्थ की बात है कि भैया सच बात तो लग रही है ना, शरीर को तो हम ही छोड़ के आते हैं ना। जैसे जैसे हमारी एज होती रहती है, इमेजिन व्हेन वी आर चिल्ड्रन, how our parents bring us up and how much love and care we get from them, and when they start growing older and older and older, you know, it's is it the same affection they can get from us? They don't. It's not possible. It's almost against the niyam. What I put into my children, will my children put the same thing, same emotion back into me when I'm older? It's not possible. क्यों? क्योंकि भगवान के अपने नियम में ही ऐड हुआ है। What is it? जो तुम्हारा है नहीं, तुमने उसको अपना समझ के तुमने व्यवहार किया, लेकिन अपना समझे समझे भी वो क्या अपना है? अगर होता तो आपका अपना संबंध ही अलग होता, लेकिन है ही नहीं, किसी के लिए नहीं है। इट्स नॉट एक्सक्लूसिव टू एनीबडी इन एनी जनरेशन। सो व्हाट इज द विजडम? कमिंग बैक, व्हाट इज द विजडम? शास्त्र सेज थोड़ा थोड़ा अपने विचारों को, ओके लेट मी पुट इट दिस वे, थोड़ा थोड़ा विचारों को विचारित करो, मतलब थोड़ा थोड़ा विचारों के साथ जुड़ो, जो विचार आपको अपने स्वरूप की तरफ ले जाते हैं। उन विचारों से जुड़ो जो आपको स्वरूप की तरफ ले जाते हैं। दैट मीन्स उन विचारों को त्यागो जो आपको अपने स्वरूप से दूर करके किसी लेयर को जोड़ देते हैं। Those layers you can also call the koshas. अगर वो आपको किसी चीज के साथ जोड़ रहे हैं और वो वस्तु का स्वभाव नश्वर है, मीन्स सॉरी क्षर है, अगर उसका स्वभाव क्षरत्वम है, बुद्बुदवत है, then that means you are on a temporary association. It is a temporary association. For a life journey, yes, you can maintain it. काहे को अपने जीवन को उथल पुथल करना? For a life journey, you can maintain it. But for the Buddhi's journey, you will have to always remember the fact that what it is made up of, the gross body is made up of the elements, is not made up of the elements, is the elements. कोई बना ही थोड़ी है, जब बना है तब हम उसको ये कह, अब स्वेटर जब बना है, स्वेटर what is it? Is made up of wool or is wool? जब उस आकार में भी है, we say it is made up of wool, but is it made up of wool or is it wool? It is wool only. A pot, is it made up of clay or is it clay? It is clay. Is this body made up of 5 elements or is it the 5 elements? It is the 5 elements. And what is already the 5 elements? How am I that? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अगर मैंने इतना समझ लिया कि it is anyway 5 elements, it's not made up of 5 elements. अगर मेरी दृष्टि में ये आ गया, अरे ये तो 5 तत्व है, ये
सी इवन व्हेन आई से इट, कैसे क्लैरिटी आपकी बुद्धि में वो गैप कर देती है, डिसर्नमेंट होने शुरू हो जाती है। द मिनट आई, अरे ये तो पांच तत्व है, द द सेंटेंस इटसेल्फ में मैं नहीं आता, मैं तो पांच तत्व हूं। सही लगता है सेंटेंस सुनने में, मैं तो पांच तत्व हूं। अरे ये तो पांच तत्व है, ये तो पांच तत्व है। अगर ये पांच तत्व है तो ये मैं तो नहीं है। मगर मेरे अपने व्यवहारिक जीवन, दैनिक जीवन, डे टू डे लाइफ, when I wake up in the morning till I go to sleep, the body is only the locus of my existence felt. What is the locus meaning? ये वो स्थान है जहां पे मेरे एग्जिस्टेंस का मुझको अनुभव हो रहा है। मगर भ्रांति क्या है कि जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझ रही हूं। It is like saying, it said in the previous examples in the Atma Bodh, in that pot of water, the sun appears. Pot of water, sun appears. Sun is reflected there. सूर्य प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उस सूर्य को इधर ही स्थित होते समझना कि पानी में ही सूर्य है। The outer body of the pot is supposed to be the gross body. The water in the pot is the subtle body, and in that subtle body is the sun which expresses itself. Will I be right? No. वो सन अगर उसको अपने आप को भ्रांति हो जाए कि मेरा अस्तित्व सिर्फ इस पॉट में है, is it, should I repeat the example? There is a pot of water. वो पॉट हमारा ग्रॉस बॉडी है, क्योंकि वो तो स्थूल मटेरियल से बना हुआ है। इन इट इज वाटर, वो हमारा सटल बॉडी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पॉट के अंदर जो पानी है उसके अंदर रिफ्लेक्टेड बिल्कुल उसी आकार में आ रहा है। Now if the सूर्य starts to believe, सूर्य चैतन्य है, उसको अगर ये बोध होने लगे कि मैं ये ही हूं, आई एम ओनली दिस, कि अगर ये पॉट टूटेगा तो मेरा क्या होगा, मैं भी गई। अगर ये पॉट टूट गया तो मैं भी गई। I'll also be, I will die. If the pot breaks, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मेरा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं रहूंगी ही नहीं ना। मेरा तो एग्जिस्टेंस ही पॉट के अंदर है। अगर पॉट है तो मैं हूं, पॉट में भी अगर पानी है तो मैं हूं। इफ आई हैव एन अंतकरण, मैं हूं। अगर ये अंतकरण अगर हमारा, हमें ऐसा लगता है नहीं हो तो वेयर एम आई? तो ये विचार कि मैं पॉट में ही सीमित हूं, ये सूर्य अपना विचार कब कर सकता है? जब सूर्य पॉट में दिख रहा है, अपने आप को पॉट से लिमिटेड समझ रहा है, तभी वो सोच सकता है कि क्या मैं लिमिटेड हूं पॉट तक। मगर जो सूर्य पॉट में रिफ्लेक्टेड ही नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द पॉट, देयर इज नो रिफ्लेक्शन इन दैट पॉट। नाउ कैन द सन think, who am I?
Can it think who I am? नहीं ना. क्यों? उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. वो है ही नहीं वहां पे, तो वो सोचेगा कैसे? It's not reflected. I hope the analogy keeps getting translated back in your minds. तो जो रिफ्लेक्टेड ही नहीं है वो सोच ही नहीं सकता. यहां पे क्या हो रहा है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर? यहां पे वही सूरज जिसको अब हम ब्रह्म कहेंगे, वही यहां के अंतकरण जो हमारा पानी है, ये जो स्थूल शरीर प्रकृति का बना हुआ जो इसका आउटर बॉडी है, ये ब्रह्म यहां पे रिफ्लेक्टेड है, प्रकाशित है. रिफ्लेक्टेड का मतलब प्रकाशित है. इन द अंतकरणम ये प्रकाश दे रहा है, वही ब्रह्म प्रकाश दे रहा है. अब जब वह शरीर में प्रकाश अनुभव हो रहा है, तो ये तो जहां जिसको अनुभव हो रहा है कि मैं ये हूं, वही सोच सकता है क्या मैं यही सिर्फ हूं? Is my existence only limited to the body? और यहां वेदांत की पूरी प्रक्रिया is the only helping aid in सृष्टि. There is nothing else that helps in सृष्टि. और कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो आपको ये दिखा सके कि आपका कौन सा अंश विचार का एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, ब्रह्म रूप है, और कौन सा अंश आपके विचार में जीव रूप अनुभव हुआ भ्रांति है. The reflected sun, when it starts thinking that I am sun and I am limited to this pot and I am only there as long as there is water, and as long, and the irony will be, अगर सूरज प्रकाशित हो रहा है तो सूरज फुल ग्रोन है आकाश में, और उसी के प्रभाव से पानी इवेपोरेट होता रहेगा. तो उसी के प्रभाव से पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो वो पानी का क्षय होता दिख रहा है. मेरा जीवन जा रहा है, मेरा जीवन जा रहा है, मेरा जीवन जा रहा है, मेरा जीवन जा रहा है. तो सूर्य जो प्रकाशित हो रहा है उस पट में, उसको लग रहा है कि अरे मेरा जीवन जाता जा रहा है. वो किसके प्रभाव से हो रहा है? उसी के सूर्य के प्रभाव से हो रहा है. तो जब तक वो पूरा नहीं गया, उतना ही काल है उसके पास कि वो उस काल के अंतर्गत ये निश्चय पे आ जाए कि एम आई लिमिटेड टू दिस. आवर एग्जाम्पल, ओल्ड एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, दैट इज वाई दे से जो आप बचपन में सीख लेते हो वो हमेशा आपके साथ रहता है. द केव, द एग्जाम्पल ऑफ द केव मैन. An entire generation lived in the cave, believing that to be life, believing that to be the only purpose of life. Around the fire, live and exist and dance and eat and produce more children, and but everything within that, just their whole purpose is to just keep the fire there, till one person's बुद्धि wakes up. क्या इसके उधर भी कुछ है? उसको कुछ गहरा गहरा माउथ ऑफ द केव की तरफ, देयर इज समथिंग मूविंग, यू नो, पूरा अंधेरा पे. बिकॉज as long as there is the existence of everyone near the fire, it looks like there is some light there, but towards the one end there is darkness and darkness and darkness felt. इस इंसान को लेकिन फिर भी मन में आया, जाके देखते हैं कुछ है. Who is that one जिसको जाके देखें कि है क्या वहां पे?
And as the person moves, sure enough, it's more engulfing darkness. जैसे जैसे वो हमारे लेयर्स को हम त्याग रहे हैं, हमें हमारा अस्तित्व उससे फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है। हम फ्रीडम फील क्यों कर रहे हैं? जब जब हम फॉल्सनेस को गिव अप करते हैं, as it keeps moving and it comes to the mouth of the cave, it is all light. It's all flora and fauna and a totally different expression of life. Now, what is happening to all those Jivan Muktas? This is also to the, अगर हमारे मन में प्रश्न आता है कि बड़ा मुश्किल लगता है, जीवन मुक्त ने क्या किया? कौन सा जर्नी लिया उसने जो असंभव लग रही है? पहले असंभव कैसे लगती है? बिकॉज इट इज सीम्स टू बी अ प्लेस ऑफ अननोननेस। इन माई एग्जिस्टेंट लाइफ ऑफ सन, जो मेरे इस के अंदर प्रकाशित है, बस इसी के व्यवहार में मुझे मेरा जीवन दिखता है। मी, माई लाइफ, माई चिल्ड्रन, माई मनी, माई स्टेटस, माई प्रॉपर्टी, माई व्हाट एल्स इज देयर, my likes, my dislikes, my family, my family's family, and my extended family, and my neighbors, and my friends, and my colleagues, and my job, and my this is the same fire के आसपास की जर्नी। All of us have the same life. इनमें से कोई की भी अलग तो नहीं होएगी ना? All of us have the same life. All of us have family, my life, my family. All of us have my family, my children. All of us have my children, my grandchildren. For all of us have my husband, my wife, my neighbor, all of us. This is exactly the same life. किसके अंदर जुड़ी हुई है ये लाइफ? किसकी लाइफ ये है? That sun that is reflected in the pot. ये हर सन रिफ्लेक्टेड इन द पॉट की सबकी सेम लाइफ है। एंड दिस इज वेयर वी शेक आवरसेल्व्स। हमको लगती नहीं सबकी सेम लाइफ, हमको लगता है मेरी लाइफ, सबकी सेम लाइफ है। देयर इज नो डिफरेंस ट्रूली स्पीकिंग, एंड इट्स नॉट जस्ट इन आवर जनरेशन बिकॉज आई एम बॉर्न देयरफॉर सबकी मेरे, नो, ever since human being is there, and ever since human being will be there, till any form of life will be there, उस स्पीशीज की, उस फायर के अराउंड उसकी उतनी ही लाइफ है। Who is a जीवन मुक्त? उसके अंदर, जिसके अंदर वो प्रश्न आया, who makes my breath activate the elements here? What makes me think? What makes me hear? What makes me feel? What makes me think? In fact, how do I think I am this? मैं यही हूं। ये विचार मेरे मन में आता कैसे? मैं कुछ और नहीं हूं, क्यों नहीं आता? As a question, मैं यही हूं और ये संशय नहीं है मुझको, मैं यही हूं। मगर यही हूं तो सबको यही लगता है। All of us. So are we like the other schools of thought would say, so many different suns are so many different realities? No. This is the greatness of Acharyas. The more Vedanta gets embedded in our thinking, the more we realize the possibility ki ekatvam alone is the answer. Bahutvam cannot be the answer. तो मेरे विचार में जो मैं ये बहुतों में बटी हुई हूं, in different roles, in different places, in different ideas, in different wants, in different, all these that I have made, Shastra says, Tyajya. All this anyway will be
left only behind. ये संबंध, when you really look back, you realize the संबंध that death takes away, that संबंध is now not returning back. आप दोस्तों से, हम बचपन में करते थे ना, कुट्टी, मेरी कुट्टी तेरे साथ, थैंक्स टू चाइल्डहुड इनोसेंस, वो थोड़ा भूल जाते थे 1 घंटे के अंदर कि अरे मैंने तो कुट्टी की उससे, तो फिर अब चल अब्बा, फिर से अब, व्हाट इज दैट? कुट्टी हो गई, अब्बा हो गई. व्हाई? बिकॉज देयर कैन बी अ कंटिन्यूटी. बट व्हाट गेट्स डिसकंटिन्यूअस? यहां हमारा प्रश्न शास्त्र हमको कहता है, एक्सप्लोर व्हाइल द कंटिन्यूटी इज स्टिल देयर. एक बार कंटिन्यूटी खत्म हो गई तो जो कंटिन्यूटी अभी है आप उसको एक्सप्लोर करो. माय ग्रैंडमदर, आई डोंट नो. Great grand, let's start from there. My great great grandmother, does anybody remember the great 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 grand? Let me add one more in case anyone. Great 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 grandmother. किसी को याद है अपनी ग्रेट 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 ग्रैंडमदर? लेकिन अगर वो होती नहीं तो क्या आप इधर होते? It's not possible to be here if you didn't have a great 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 grandmother. But you cannot start a reflection of संबंध है क्या मेरा और उनका, ना? You cannot start from there because वो है ही नहीं. आज जो संबंध है हमारे, जिसमें शास्त्र doesn't even talk about the external संबंध, वो कह रहा है भ्रांति तुम्हारे सब एक्सटर्नल संबंध की भी तब है जब तुम्हारा ये शरीर से संबंध अपना समझा हुआ है. जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो शरीर से जुड़ा सब, how is that me? How is that mine? So what do you have? Just roles to play. Just roles to execute. But every spare time we have in our life, every spare moment where I'm relaxed, my effort should be to start finding out the आत्मा that is here, जिसको मैं कह रही हूं, ये आत्मा का स्वभाव, का स्वरूप क्या है, which he has started saying in the 34th verse, having given the negation that ये आत्मा, now negation हो गया, this body, this mind, राग द्वेष, ये सब शर में है, ये सबको त्यागो, शास्त्र कहता है. फिर कहां ध्यान दोगे? ये आत्मा कैसी है? What is it that is there which I can pay? जो बदल रहा है वो तो मेरे कॉग्निशन में है, मगर जो बदल नहीं रहा, डिफिकल्टी इज बिकॉज ऑफ दैट, कि वो मेरे कॉग्निशन में नहीं है. एंड शास्त्र ने कहा है कि वो आपके कॉग्निशन में इसलिए नहीं है क्योंकि जो बदल रहा है वही कॉग्निशन में रहता है एज में, वो मिसएप्रिहेंड हो चुका है. तो जब आप इसको धीरे धीरे निकालोगे तो अब आपको ध्यान अपना हटाना है और अपने आप हटेगा टू सम एक्सटेंट. एंड व्हाट विल यू स्टार्ट सीइंग? व्हाट इज आत्मास प्योर स्वभाव? सन का अपना स्वभाव क्या है? ही सेज उसमें कोई गुण नहीं है. इट इज निर्गुण. It is nirgun, as in the entire prakriti is made up of gunas. Gunas means qualities. Qualities कुछ भी quality कह दो. आप dark, black, white, brown, आप short, tall. You don't have to just say sattva, rajas, tamas. Whatever is changing has qualities attributed. Those qualities are not there in Atma. तो मेरे विचार में, I'm coming back to the first sentence. The first sentence that I started the class with.
हमारे ही भ्रांति में एक अंश है जो बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो एक्सक्यूज मी वो गुण है, गुणों से युक्त है, उसके अपने क्वालिटीज हैं। इट इज मेड अप ऑफ सम क्वालिटीज। जो नहीं बदल रहा, जो अंश मुझे पहचानना है, उसको पहचानूं कैसे? वो निर्गुण है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। जो क्वालिटी नहीं है तो पहचानूं कैसे? है ही नहीं उसका कोई क्वालिटी, तो हाउ विल आई नो? बाय नेगेटिंग व्हाट इज हैज द क्वालिटी। जो निर्गुण है वो अभिव्यक्त होती रहेगी। इट विल कीप शाइनिंग फॉर्थ मोर एंड मोर। आई रिपीट, जो गुण है उसको जैसे जैसे हम छोड़ रहे हैं, तो जो निर्गुण है वो अपने आप स्वयं सिद्ध है, वो आत्मा प्रकाश है, वो अपने आप रिवील करती रहेगी। उसका निर्गुणत्वम से वो अपने आप दृष्टि में आ जाएगी, आत्मदृष्टि में रहेगी। आत्मदृष्टि मीन्स माय ओन परसेप्टिव कैपेसिटी। जैसे जैसे मेरी गुणों से अपनी नजर हटेगी, ये निर्गुणत्वम परसेप्शन में आएगी। एंड व्हाई इज इट गुण रहित? बिकॉज इट इज नथिंग टू डू विद द बुद्धि आदि, ऑल दिस उपाधि। बुद्धि आदि से रहित है। ऑल द वाटर इज द अंतकरणम, जहां पे सूर्य मैनिफेस्ट हो रहा है। बुद्धि आदि इज द फाइनल उपाधि दैट वी नो ऑफ। ये है ही नहीं, ये इससे भिन्न है। जो मुझे बुद्धि आदि में दिख रही है, इन अदर वर्ड्स लेट मी कंक्लूड, जो मुझे बुद्धि आदि में दिख रही है वो क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। ओके, व्हाट एल्स? शरहूत। ओके, शरत्वम। ओके, जो बुद्धि आदि में दिख रही है वो क्या है? वो रिफ्लेक्टेड सन है, ओके, रिफ्लेक्शन है। सो चेंजिंग, बदलता हुआ। हाँ जी, मिथ्या। ओके, मिथ्या। मिथ्या, यस। चेंजिंग, बदलता हुआ। चेंजिंग, बदलता हुआ, करेक्ट। जो बुद्धि आदि में अनित्य। अनित्य, चिदाभास। With gun. सो With gunas. with guna, so correct, very very close now। जो बुद्धि आदि में मुझे प्रतीत हो रही है वो क्या है? अपने अनुभव को देख के बोलो। It's a reflection. ओके, ओके, जो इंडिकेट करता है प्रतीति। ever changing, ever changing. एवर चेंजिंग, यस। अरे जो मुझे उसको मैं कह रही हूँ कि ये मैं हूँ। That's हाँ, not me. अहम। So you should have said it। अहम। मेरे बुद्धि आदि में मुझे आज क्या दिख रही है? I'll repeat this again, very subtle but absolutely it'll hit the discernment। जो सन रिफ्लेक्टेड है मीन्स अंतकरण, जो हमारे अंतकरण में जो हमको आज अहम की प्रतीति हो रही है, मेरे होने का मुझको कहाँ प्रतीत हो रहा है? इन बुद्धि आदि। इधर ही मुझे लग रहा है ना कि मैं हूं, इस उपाधि से जुड़ के ही मैं हूं लग रहा है। आई डू नॉट नो हु आई एम विदाउट द उपाधि। सो उपाधि से जुड़ के ही जो मुझे मैं लग रहा है, वो मेरे बुद्धि के साथ जुड़े हुए में जो मैं दिख रहा है, वो ही तो जीवाभास है, वही जीवत्वम का अहम है। एंड व्हाट इज शास्त्र सेइंग? इट्स निर्गुणम। तो जो अभी मुझे फील है, गुणों से युक्त मुझे अहम का जो अनुभव हो रहा है, ये त्यागो।
क्योंकि आत्मा इज निर्गुण, वो बुद्धि आदि के गुणों से युक्त नहीं है, निर्गुण है। बिकॉज इट इज निर्गुण, therefore it is also changeless. विकार नहीं हो सकता, निर्विकार। He'll keep adding one later on. Okay, we'll end here. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम एवरीवन, प्रणाम। धन्यवाद।